اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے کم ہو. میرے ہاتھ میں اگر کوئی قیمتی گھڑی ہو, مان لو سونے کی گھڑی ہو, اور جنگل میں مجھے 10-15 لوگ پکڑ کے گھیر لیں اور کہیں کہ گھڑی اتار, ان کے ہاتھ میں چاقو ہو اور کہیں گھڑی اتار, گھڑی بہت قیمتی ہے, حالانکہ سونے کی گھڑی مرد کے لیے سونا حرام ہے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں, سب بہت قیمتی گھڑی ہے, میں کیسے دے دوں, بڑی محنت سے پیسہ کمایا اگر اس کو خریدا تھا, میں کیسے دے دوں. ان لوگوں نے پکڑ لیا, چاقو نکال لیا, ہاتھ پہ رکھ دیا اور کہا سن, گھڑی دے رہا یا نہیں دے رہا یا میں ہاتھ کاٹ ڈالوں. انہوں نے چھری آپ کے, چاقو آپ کی کوہنی پر رکھ دیا, آپ کے ہاتھ کو ٹائٹ پکڑ لیا, گھڑی دے رہا یا ہاتھ کاٹ دوں. گھڑی بھی پیاری, ہاتھ بھی پیارا, لیکن عقل مند انسان کون ہے؟ عقل مند انسان کون ہے؟ عقل مند انسان وہ ہے جو گھڑی دے دے اور اپنے ہاتھ کو بچا لے. ہاتھ سلامت رہے گا تو محنت و مزدوری کر کے گھڑی اور بھی خرید لے گا, لیکن اگر گھڑی کے بچانے کے چکر میں گھڑی بھی گئی اور ہاتھ بھی گیا تو یہ تو بڑا بے وقوف انسان. اس کو محبت گھڑی سے بھی ہے, اس کو محبت ہاتھ سے بھی ہے, لیکن دونوں میں سے ایک چیز کی قربانی دینے کا موقع ہے, ایک چیز کی قربانی دینا پڑ رہی ہے, تو عقل مند انسان وہ ہے جو گھڑی کی قربانی دے دے اور اپنا ہاتھ بچا لے. اسی طریقے سے وہ تمام لوگ مل کر یہ کہیں کہ ہاتھ کٹا لے, یہ تو نے یہ ہاتھ دے مجھے, تیرا ہاتھ کٹے گا, اور آپ ہاتھ بچانے کے چکر میں کھینچے اپنا, اور انہوں نے چھرا لے کر پیٹ پہ گھونپنے کے لیے تیار, کہا کہ بول ہاتھ کٹا رہا ہے یا پھر میں چاقو مار کر تیری جان لے لوں, ابھی قتل کر دوں گا, تیرا مرڈر کر دوں گا. ہاتھ بھی پیارا, جان بھی پیاری, لیکن دونوں میں سے کسی ایک چیز کی قربانی دینے کا وقت ہے. ایک چیز کی قربانی دے دیں گے تو دوسری چیز بچ جائے گی. تو یہاں عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے ہاتھ کی قربانی دے دے اور اپنی جان بچا لے. کم سے کم وہ اپنی اولاد کے سامنے, اپنے ماں باپ کے سامنے, اپنے بیوی بچوں کے سامنے موجود تو رہے گا, ان کی خیر خیریت تو لیتا رہے گا. اگر جان ہی چلی گئی تو فائدہ کیا ہاتھ کو بچانے کے چکر میں. فرمایا کہ باپ سے محبت ہو, آبا و اجداد سے بھی ہو, اولاد سے بھی ہو, بھائیوں سے بھی ہو, بیویوں سے بھی ہو, خاندان سے بھی ہو, مال سے بھی محبت ہو, تجارت سے بھی محبت کرو, بزنس کرو, مکان سے بھی محبت کرو, لیکن اتنی محبت نہیں کہ جب قربانی دینے کا موقع آ جائے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو قربان کر دو. نہیں, جب قربانی دینے کا موقع آئے تو ماں باپ کی قربانی, آبا و اجداد کی قربانی, بھائیوں کی قربانی, بیٹوں کی قربانی دے دینا, مال و دولت کی قربانی دے دینا, مکان کی قربانی دے دینا, بزنس کی قربانی دے دینا, لیکن میرے پیارے ساتھیوں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو قربان مت ہونے دینا. یہ ہے محبت کا معیار. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں لڑ رہے ہیں, اور لڑتے لڑتے ان کا ہی بیٹا عبد الرحمن ابو جہل کا ساتھ دے رہا ہے. اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا. جنگ بدر ختم ہو جاتی ہے, ایک دن بیٹا اسلام بھی لے آتا ہے, اور کافی دنوں کے بعد ماں باپ بیٹا سب کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھے ہیں. بیٹے نے یاد دلایا, امی زندہ ہیں, سلامت ہیں ابو ہمارے, جنگ بدر میں ان کو ڈھونڈ رہا تھا, اور میری تلوار ان کی گردن کو کاٹنا چاہتی تھی, لیکن جب یہ میرے سامنے آ جاتے تھے لڑتے لڑتے, اور میں دیکھتا تھا یہ میرا باپ ہے, تو میں تلوار ہٹا لیتا تھا اور نظریں بچا لیتا تھا کہ میرے ہاتھ سے باپ کی گردن نہ کٹ جائے. جاتا تھا ان کے قریب, تلوار اٹھاتا تھا, یہ نظر اٹھا کیسے دیکھتے تھے, میں دیکھتا تھا یہ تو میرے باپ ہیں, میں چھوڑ دیتا تھا, آگے بڑھ جاتا تھا. امی اگر یہ نظریں اٹھا کے نہ دیکھتے تو گردن کٹ جاتی, آج تم بیوہ ہو جاتی. ابو بکر صدیق کا جواب کیا تھا, اے میرے بیٹے میدان جنگ میں بار بار میں تیری تلوار ہی کے نیچے کیوں آ رہا تھا, یہ غور نہیں کیا. کہا ابو بار بار آپ میری تلوار کے نیچے آ رہے تھے, وجہ کیا تھی؟ کہا بیٹے میدان جنگ میں بھی تجھی کو ڈھونڈ رہا تھا اور تجھی کو قتل کرنے کے لیے جا رہا تھا. جب میں تلوار اٹھاتا تھا تب تک تو میرے اوپر حاوی ہو جاتا تھا, میں نظریں اٹھاتا تھا تو باپ سمجھ کے چھوڑ دیتا تھا, لیکن اللہ کی قسم اگر میدان جنگ میں تو میری تلوار کے نیچے آ گیا ہوتا,
اگر بدر کے میدان میں تو میری تلوار کے نیچے آ گیا ہوتا اور تو اپنا سر اٹھاتا، میں دیکھ بھی لیتا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کے باوجود میں تیری گردن پر تلوار چلا دیتا، اس لیے نہیں کہ یہ میرے بیٹے کی گردن، بلکہ اس لیے مارتا کہ جناب محمد رسول اللہ کا دشمن ہے، اس لیے میں تجھے قتل کر دیتا اور مجھے کوئی بھی افسوس نہیں ہوتا۔ اپنی اولاد سے بھی زیادہ ابو بکر صدیق کا یہ جواب آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ اور رئیس المنافقین کو دیکھو، اس کے بیٹے نے اپنے باپ کی گردن پر تلوار رکھ لی اور کہا کہ ابو مکے سے مدینے سے بھاگنے نہیں دوں گا، بارڈر پر کھڑے ہو، تلوار میری آپ کی گردن پر ہے۔ آپ نے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ کو گالی دی ہے، آپ نے کہا ہے لا یخرجن العز منها الازل، عزت والا ذلیل انسان کو مدینے سے نکال دے گا۔ آپ نے اپنے آپ کو عزت والا اور محمد رسول اللہ کو ذلیل کہا ہے۔ یہ تلوار میری گردن آپ کی گردن پر رکھی ہوئی ہے، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو گردن کاٹ دوں گا جب تک محمد رسول اللہ آپ کا فیصلہ نہ کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ آئے عبداللہ ابن ابی کے بیٹے عبداللہ کی اپنے باپ کی گردن پر تلوار کیوں رکھے ہو؟ پورا واقعہ بیان کر دیا۔ فرمایا تمہارے باپ کا حکم کیا ہوتا ہے؟ جبرائیل مجھے بتائیں گے، اللہ رب العالمین آرڈر دے گا۔ عبداللہ ابن ابی کے بیٹے نے جو جملہ کہا اس جملے کو سنو۔ فرمایا اللہ کے رسول آپ ابھی رکے ہوئے ہیں، کیوں؟ فرمایا جبرائیل کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ دیکھیں اللہ کی طرف سے تیرے باپ کے لیے کیا حکم ہوتا ہے۔ فرمایا عبداللہ ابن ابی کے بیٹے نے اے اللہ کے نبی، اگر آسمان سے جبرائیل میرے باپ کے قتل کا آرڈر لے کر آئیں، میرے باپ کے قتل کا حکم لے کر آئیں، تو اے اللہ کے نبی یہ حکم کسی اور کو مت دینا، یہ مجھے دینا۔ آپ حکم دیں گے میں اپنے باپ کی گردن کاٹ کر آپ کے قدموں پہ ڈال دوں گا۔ میرے بھائیوں، یہ لوگ بھی تو ایمان والے تھے، یہ لوگ بھی تو مومن تھے، یہ لوگ بھی تو اپنے ماں باپ اور اپنی اولاد سے محبت کرتے تھے، لیکن ہاں اللہ اور اس کے رسول کی محبت جب آ جاتی تھی اور دونوں محبتوں میں سے کسی ایک محبت کو قربان کرنا پڑتا تھا تو وہ ماں باپ اولاد کی محبت قربان کر دیا کرتے تھے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو قربان نہیں کرتے۔ یہ کون سی محبت ہے جو سمجھ میں نہیں آتی؟ وہ نبی کہہ رہے ہیں الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور یہ بیچارے جشن منا رہے ہیں، چراغاں کر رہے ہیں، ڈھول بجا رہے ہیں اور ڈی جے بج رہے ہیں، گانے بھی بجائے جا رہے ہیں، اور بدبختوں نے ایسی انسلٹ کی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا جنازہ نکالا کہ ابھی پاکستان کے اندر 20 کلو کا ایک کیک بنایا گیا ہے، 20 کلو کا ایک کیک بنایا گیا ہے اور اس کیک کے اوپر محمد لکھا گیا ہے۔ 20 کلو کا کیک اور اس کیک کے اوپر محمد لکھا ہوا ہے، پورے کیک پر محمد، اور 12 ربیع الاول کو وہ کیک کاٹا جائے گا۔ ان کے کلیجے کیسے برداشت کر لیتے ہیں کہ اپنی چھری سے لفظ محمد کو کاٹا جائے؟ کیک پر محمد لکھا ہے اور اس کو کاٹا جائے گا اور وہ کیک اپنے یاروں دوستوں کو کھلایا جائے گا، جیسے ہم لوگ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو اپنے بچوں کی جشن برتھ ڈے مناتے وقت کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس وقت یہی ہوگا، محمد کے نام پر چھری چلے گی، وہ محمد کا نام، وہ محمد رسول اللہ کا نام، کہ جب اللہ کے نبی نے علی سے کہا اے علی، یہ کافروں کا سردار قریش سہیل کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو رسول اللہ مانتے ہی نہیں ہیں، اس لفظ کو کاٹو۔ اے علی کاٹ دو، میں رسول اللہ بھی ہوں اور عبداللہ کا بیٹا بھی ہوں، یہ مجھے رسول اللہ نہیں مانتا تو کیا ہوا، کاٹ دو رسول اللہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قلم کو لے کر واپس کر دیا تھا اور کیا کہا تھا اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں لفظ رسول اللہ کو اپنے ہاتھ سے کاٹ سکوں۔ وہاں حکم دے رہے نبی کہ کاٹ دو، اور حضرت علی کہہ رہے کہ میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں آپ کے نام کو کاٹ سکوں۔ اور یہ بے غیرت 20 اور 25 کلو کا کیک بنا کر اس پر محمد لکھتے ہیں، اور محمد لکھنے کے بعد اس پر چھری بھی چلا دیتے ہیں، اور پھر دعویٰ ہے عشق رسول کا، عاشق رسول کا۔ یہ محبت کا معیار ہے۔ یہاں اذان کی آواز آ رہی ہے، حی علی الصلاح،
नबी का फरमान है सलात कुर्रतु ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। और ये बेचारे डीजे बजा रहे हैं, नमाज मस्जिद कोई परवाह नहीं हो, कोई फिक्र नहीं। ये कौन सी मोहब्बत का मयार है। अबू दाऊद किताबुल जिहाद के अल्फाज हैं कि एक सहाबी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठे थे और वहां नबी अकरम दर्स दे रहे थे, वाज़ व नसीहत कर रहे थे। उसको सुनकर जब ये घर आए तो उनकी बीवी जो पेट में बच्चा था कहने लगी, हर वक्त मोहम्मद की बकवास सुनते रहते हो, इतना टाइम तुम उस मस्जिद में लगा देते हो और मोहम्मद की बातों में लगा देते हो कि तुम्हें पकने और खाने की कोई फिक्र नहीं होती, बच्चों की कोई फिक्र नहीं होती, तो मोहम्मद की बकवास सुनते रहते हो। बीवी ने ये जुमले कहे। अबू दाऊद उठाओ किताबुल जिहाद चैप्टर खोलो, वो सहाबी कहते हैं जब उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना शुरू कर दिया और उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, कहते हैं कि मेरी नजर घर के आंगन में पड़ी, एक खंजर मेरी नजर के सामने आया, मैंने उस खंजर को उठाया और मैंने बड़बड़ाने वाली, बकवास करने वाली, नबी की शान में उल्टा सीधा बोलने वाली अपनी बीवी के पेट में पूरा का पूरा खंजर दाखिल कर दिया। वो पेट का बच्चा था जमीन पर आ गया, तड़प तड़प कर वो बच्चा थोड़ी ही देर में मर गया और बीवी भी उसकी थोड़ी देर में तड़प तड़प कर ठंडी हो गई। उसके बाद तो खंजर लेकर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास गया और अपने जुर्म का इकरार कर लिया। ऐ अल्लाह के नबी, मैंने अपनी बीवी का कत्ल किया है, मैंने अपनी बीवी को मारा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा पूरी बात बताओ। उसने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मेरी बीवी थी, बहुत ही ज्यादा आपको उल्टा सीधा बोलती थी। ली मिन्हा इब्नान, मेरी बीवी से 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं मेरे, जो पहले से पैदा हैं, 2 बच्चे भी हैं, 2 बेटे भी हैं। मिसलुल लुलुएन, बहुत खूबसूरत, बिल्कुल मोतियों की तरह हैं, बहुत खूबसूरत, बिल्कुल मोतियों की तरह हैं, बहुत खूबसूरत हैं, अभी भी हैं। और एक बच्चा पेट के अंदर था। ऐ अल्लाह के नबी, जब मैं आपका दर्द सुनकर गया तो वो आपको गालियां दे रही थी, उल्टा सीधा बोल रही थी और कह रही थी कि मोहम्मद की बकवास सुनते रहते हो, फालतू तुम्हारे पास वक्त है, तुम्हें अपने बच्चों की फिक्र नहीं है, मोहम्मद की बकवास में लगे रहते हो। बस ये बदतमीजी मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। आपकी मोहब्बत मेरे दिल में इतनी थी कि फिर मैंने अपने बेटों की मां, अपनी बीवी का चेहरा भी देखना गवारा नहीं किया। खंजर रखा हुआ था और मैंने अपनी बीवी के पेट में वो खंजर मार दिया और उसको कत्ल कर दिया। ऐ अल्लाह के नबी, इस जुर्म की सजा में अगर मुझे कत्ल करना है तो आप कर सकते हैं, मैं अपनी बीवी को कत्ल तो कर सकता हूं, लेकिन आपकी शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपने थोड़ी देर गौर किया और गौर करने के बाद फरमाया, जाओ, तुम्हें आजाद किया जाता है, मैं अल्लाह के सिपाहियों से इंतकाम नहीं लेता। दुनिया की हदीस ये बतलाती है कि हर किसी से बदला लिया जाएगा, लेकिन अगर कोई नबी की शान में गुस्ताखी करे और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को गाली दे तो उसकी एक ही सजा है, उस दुनिया में उसको जिंदा रहने का हक नहीं। इस्लाम में यही सजा है। मैं इस्लाम के में सजा की बात कर रहा हूं, हिंदुस्तान के लॉ और कानून की बात नहीं कर रहा हूं। इसलिए तोड़ मरोड़ कर इसको पेश न किया जाए। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो कि कौन सी मोहब्बत थी। हम मोहब्बत के दावेदार तो हैं, लेकिन अभी शादी करके देख लीजिए अपने बेटे की या बेटी की, सारी बातें आपको अपनी औरतों की और अपने घर की लेडीज की मानना पड़ेगी। लड़के को देखने का मसला आए, लड़की को देखने का मसला आए, फिर पक्का करने का मसला आए, फिर मंगनी का मसला आए, फिर अंगूठी पहनाने का मसला आए, फिर बारात का मसला आए, फिर जहेज का मसला आए, आपकी चल ही नहीं सकती है। जो कुछ भी चलेगी वो आपके घर की औरतों की चलेगी। और मोहब्बत रसूल के दावेदार एक तरफ रखे रहेंगे, अपने बेटे और बेटियों और बीवियों की मोहब्बत से लाचार और मजबूर होकर बेचारे अपने घर के कोने में बैठे रहेंगे, इनकी कुछ नहीं चलेगी। आप बारात का सिस्टम खत्म नहीं कर सकते हैं और दावा करते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत का। आप जहेज का चलन अपने मुआशरे से खत्म नहीं कर सकते हैं और दावा करते हैं रसूलुल्लाह से मोहब्बत का। आप अंगनी मंगनी की रस्म खत्म नहीं कर सकते हैं। अब तो एक और सिस्टम चलने लगा, दिन तारीख। लड़की वाले के यहां जाकर चंद लोग तारीख लेने जाते हैं, लड़की वाले तारीख देंगे और जितने ये किराए के
टू जाते हैं, इन सबको गिफ्ट और दिया जाता है। आप आए हैं तो एक एक गिफ्ट और दिया जाए। इन लड़कियों की आहें तुम्हें कब्र में चैन से सोने नहीं देंगी, इतना याद रखिएगा। मरना सबको है। कितना बोझ बना डाला और डाल दिया है लड़की वालों की ऊपर। और दावा है मोहब्बत रसूल का, दावा है इश्क रसूल का। गौर कीजिए अपने समाज पर और सोसाइटी पर क्या नहीं होता है। हम यहां गौर करें, आबाओ अजदाद से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, भाइयों से ज्यादा, बीवियों से ज्यादा, खानदान से ज्यादा क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है हमारी? है। कितनी हम नमाज की पाबंदी करते हैं। बुखारी उठाइए, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जंग हो रही है, एक किला है, किला जिस किले को किले तुस्तर कहा जाता है, किले तुस्तर, उस किले को हासिल करना चाहते हैं। सहाबा चाहते हैं ये किला हमें मिल जाए और काफिर ये चाहते हैं ये किला हमको मिल जाए। कई दिन मुसलसल जंग चलती रही, किले तक मुसलमान पहुंच चुके, लेकिन पूरी रात जंग चली। अब थोड़ी सी मेहनत बाकी रह गई है, बस किले तक पहुंचने वाले हैं। फजर की नमाज का वक्त हो जाता है। नौजवानों सुनो, अपने आप को रसूल की मोहब्बत वाले, मोहब्बत का दावा करने वालों सुनो, थोड़ी सी दूर रह गया किला। समझ लो कि 15-20 मिनट 25 मिनट, बहुत ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा बस किला साहबा को मिलने वाला। जंग चल रही है, इतने में फजर की आजान का वक्त हो जाता है। साहबा किराम इशारों में बातें करते हैं, क्या किया जाए, पहले फजर की नमाज पढ़ ली जाए या जंग जारी रखी जाए और इस किले को हासिल कर लिया जाए। अगर सारे साहबा जंग करने में लगे रहते हैं तो नमाज छूट रही है, अव्वल वक्त जा रहा है। और अगर नमाज पढ़ लेते हैं तो काफिर किले पर चढ़ाई कर देंगे, किला जा रहा है। एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई, क्या करें? ऐसे मौके पर क्या करें? फिर इशारों में बात हुई, पहले किला हासिल कर लेते हैं, नमाज कज़ा कर लेंगे, नमाज हम लोग बाद में जमात कर लेंगे, पढ़ लेंगे। फिर सारे के सारे सहाबा ने धाबा बोला और किले पर झंडा लहरा दिया इस्लाम का। काफिरों को शिकस्त हो गई, लेकिन इतनी ताखीर हो चुकी थी कि सूरज निकलने लगा। किला तो हासिल हो गया, लेकिन सूरज निकलने लगा। जब सूरज निकल गया तो तमाम सहाबा ने वुजू बनाया। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास नमाज पढ़ाते हैं, इमामत कर रहे हैं, और तमाम सहाबा को पीछे खड़े करके फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं। सजदे में जाते हैं, इतने आंसू गिरते हैं, इतने आंसू गिरते हैं कि उन आंसुओं से जमीन में गड्ढा हो गया और गड्ढे के अंदर आंखों के गिरने वाले आंसू भर गए। जब सलाम फेरा तो सहाबा हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के सजदे की जगह देखने लगे, आंसुओं से तर है। मेरे प्यारे साथियों, पूछा, है अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, क्या किला हासिल करने की खुशी नहीं है तुम्हें, रो रहे हैं आप? हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि हाँ, किले की खुशी तो है, लेकिन फजर की नमाज का अव्वल वक्त छूट जाने का अफसोस भी है, उसका दुख भी है। ये मेरी जिंदगी की, जब से मैंने होश संभाला है, ये पहली फजर की नमाज है जो सूरज निकलने के बाद मैं अदा कर रहा हूं, मैं कज़ा पढ़ रहा हूं। ये मेरी जिंदगी की पहली नमाज है जो आज कज़ा हुई है और मैंने अब पढ़ी है। अल्लाह की कसम, मेरी जान चली जाती, मेरा कारोबार बर्बाद हो जाता, मुझसे मेरी दुनिया और दुनिया की सारी चीजें छीन ली जाती, तो इतना अफसोस ना होता जितना अफसोस मुझे इस फजर की नमाज के छूट जाने का, अव्वल वक्त के ज़ाय हो जाने का हो रहा है। इस वाक़े को सुनने के बाद अब यहाँ का नौजवान तक अपने गरीबानों में झांक कर देखे और बताए किस मुंह से वो मोहब्बत रसूल का अपने आप को दावेदार कह सकता है। हमारी मस्जिदें बताएंगी कि फजर की नमाज में कितने नमाजी आते हैं यहाँ पर। जिंदगी की एक नमाज उनकी सूरज निकलने के बाद पढ़ी, और वो भी सोए नहीं थे, बल्कि एक इस्लामी काम में ही लगे थे। एक उज़्र था, मजबूरी थी, अगर नमाज पढ़ने लग जाते तो किले पर काफिर हमला कर देते। उज़्र था उनके सामने। इस उज़्र पर भी हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रो रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझसे मेरी पूरी दुनिया छीन ली जाती तो इतना अफसोस थे। बताए ये डीजे बजाने वाले, बताए ये माइक बजाने वाले,
बताएं ये जश्न और चिरागा करने वाले, तुम तो जोहर भी छोड़ देते हो और असर भी छोड़ देते हो और मगरिब भी छोड़ देते हो डीजों की थापों की आवाजों पर, और कहते हो कि हम आशिक़े रसूल हैं। कौन सी चीज है जिसने तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह का जश्न मनाने पर मजबूर किया है? किसने बनाया? दलील मुझे दो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल के बाद नबूवत मिली, 63 साल तक जिंदा रहे। इस 23 साल के अंदर क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जश्न खुद मनाया है? कोई एक दलील। नबी इस दुनिया से चले गए, अबू बकर सिद्दीक का जमाना आया है, 2 साल खलीफा रहे। कौन अबू बकर? वो अबू बकर जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने कहा था कि अल्लाह ने मुझे अपना खलील न बनाया होता, लत्तखस्तो अबा बकर खलीला, तो मैं अबू बकर को अपना खलील बनाता। लेकिन खलील एक ही होता है और अल्लाह ने मुझे अपना खलील बना लिया। वो अबू बकर जिनके बारे में नबी ने कहा, मैं उठा अबू बकर मेरे साथ थे, मैं चला अबू बकर मेरे साथ थे, मैंने हिजरत की अबू बकर मेरे साथ थे, मैं कब्र से उठूंगा अबू बकर मेरे साथ होंगे, मैं हौज़े कौसर पर बैठकर पानी पिलाऊंगा अबू बकर मेरे साथ होंगे, मैं जन्नत में दाखिल होऊंगा तो अबू बकर मेरे साथ होंगे। वो अबू बकर जिन्होंने अपनी बेटी आयशा दी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को। ससुर 2 साल खलीफा रहे, क्या अपने इस 2 साल की खिलाफत में क्या कभी उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह का जश्न मनाया है? कभी अपने घर में मोमबत्ती जलाई है? कभी चिराग जलाया है? कभी जश्न मनाया है? कभी नबी अकरम की तारीख मिलाद मनाई है? कहते हो इब्लीस नहीं बनाता है और सारी दुनिया मना रही है। मैं पूछता हूं कि अबू बकर नहीं मनाया, क्या है वो तुम्हारी नजर में? क्या कहोगे उन्हें? हिम्मत है इब्लीस कहने की? खुलकर नहीं कह रहे हो तो क्या हुआ, लेकिन इस जुमले में कह तो दिया है तुमने, इब्लीस के अलावा सारी दुनिया जश्न मना रही है। तुम समझते हो कि सिर्फ ये वहाबी ये अहले हदीस जश्न नहीं मनाते, ये इब्लीस हैं। अबू बकर ने जश्न नहीं मनाया, क्या कहोगे? अबू बकर के बाद हजरत उमर फारूक का जमाना आया। जानते हो कितने साल खिलाफत की हजरत उमर फारूक ने? 10 साल। 10 साल में 10 मरतबा रबीउल अव्वल तारीख आई रबीउल अव्वल की। कितनी बार? 10 बार। कौन उमर? वो उमर जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने कहा था, लौ कान बादी नबियुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर नबी होते। वो उमर जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने कहा था कि उमर तुम जन्नती हो। 10 साल तक खलीफा रहे, 10 बार 12 तारीख आई रबीउल अव्वल की। क्या हजरत उमर फारूक ने जश्न मनाया? एक दलील दे दो कि हजरत उमर ने अपने घर में चिराग जलाया हो, झंडियां लगाई हो, रोशनी की हो और नबी अकरम का बर्थडे बनाया हो। एक दलील दे दो। जबकि हजरत उमर फारूक ने भी अपनी बेटी हफ्सा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को दी थी। उसके बाद उस्मान गनी का जमाना आया। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 12 साल खिलाफत की। हजरत अबू बकर ने 2 साल, उमर फारूक ने 10 साल, उस्मान गनी ने कितने? 12 साल। कौन उस्मान? वो उस्मान जिनको नबी ने अपनी एक बेटी दी, रुकैया का इंतकाल हुआ तो अल्लाह के नबी ने कहा उस्मान घबराओ नहीं, मेरे पास एक और बेटी है। आपने दूसरी बेटी भी दी उम्मे कुलसूम, और कहा जाने लगा जुन्नूरैन, 2 नूर वाले। उम्मे कुलसूम का भी इंतकाल हुआ। उस्मान रोने लगे। नबी अकरम भी फरते मोहब्बत और गम में रो रहे थे, लेकिन कह रहे थे उस्मान इतना कलेजा तुमने ठंडा किया है मेरा, इतना कलेजा ठंडा किया है मेरा कि मेरी पहली बेटी रुकैया इंतकाल कर गई, दूसरी बेटी उम्मे कुलसूम भी इंतकाल कर गई। आए उस्मान, मेरे पास अब तीसरी बेटी नहीं है। काबे के रब की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर मोहम्मद के पास 40 बेटियां भी होती और एक एक करके खत्म होती जाती तो मोहम्मद एक एक करके 40 बेटियां तेरे निकाह में दे देते। इतना नबी मोहब्बत करते थे उस्मान से, और उस्मान ने इतना दिल जीता था नबी का कि अल्लाह के रसूल कह रहे थे कि 40 बेटियां होती तो 40 भी मैं तुम्हें दे दे। उस्मान गनी ने 12 मरतबा रबीउल अव्वल का महीना उनके सामने आया और 12 मरतबा 12 तारीख आई। क्या कभी जश्न मनाया? कभी अपने घर में झंडियां लगाई? कभी चिरागा किया? कभी रोशनी की? जवाब
ہے ہی نہیں تمہارے پاس، نہیں دے سکتے ہو قیامت کی صبح تک۔ اس کے بعد حضرت علی کا زمانہ آیا، 5.25 سال خلیفہ رہے، اس کے بعد شہید کر دیے گئے۔ 5.25 سال میں 5 بار نہ صحیح تو 4 بار تو کم سے کم ربیع الاول کی 12 تاریخ آئی۔ حضرت علی کو بھی نبی اکرم نے بیٹی دی تھی فاطمہ، حضرت علی کو علم کا دروازہ کہا تھا، حضرت علی کو شیر خدا کا لقب ملا تھا۔ ذرا غور کرو، کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی چراغاں کیا، کبھی جشن منایا؟ تمہیں معلوم ہے 12 تاریخ کو نہ ابو بکر نے منایا، نہ عمر نے، نہ عثمان نے، نہ علی نے رضی اللہ عنہم، بلکہ 12 تاریخ کو کیا ہوا اگر یہ سن لوگے اور دل میں اتار لوگے تو کبھی 12 ربیع الاول کا جشن منانے کی جرات نہیں کرو گے۔ میرے بھائیوں، 12 ربیع الاول کو کائنات کو چمکانے والا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ 12 ربیع الاول کو تو محمد رسول اللہ اس دنیا سے چل بسے۔ حضرت عمر کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ آج اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا۔ کہہ رہے تھے اگر کسی نے کہہ دیا نبی کا انتقال ہو گیا تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ابو بکر نے سوالا اور فرمایا، اے عمر، اللہ تعالیٰ میرے نبی پر 2 موتیں نہیں دے گا، جو موت آنی تھی وہ آ چکی ہے۔ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ انک میت و انہم میتون، اے نبی آپ کو بھی موت آئے گی اور دنیا والوں کو بھی موت آئے گی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جب عمر ہمیں سمجھا رہے تھے اور قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے تو مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے قرآن کی آیتیں آج ہی نازل ہو رہی ہیں، اس سے پہلے کبھی آیتیں نازل نہیں ہوئی، ایسا لگ رہا تھا۔ اور تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں ابو بکر تم صحیح کہہ رہے ہو، یہ تھا 12 ربیع الاول کو کہ عمر کو اپنا ہوش نہیں ہے، کیونکہ آج دنیا کو چمکانے والا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ مدینے کے اندر جس دن جناب محمد رسول اللہ کا انتقال ہوا ہے، میں نے دونوں زمانے دیکھے۔ جب مکہ سے ہجرت کر کے آپ مدینے آئے، جس دن اللہ کے نبی مکے سے مدینہ آئے، اس سے زیادہ خوشی کا دن میں نے کوئی نہیں دیکھا، اس سے زیادہ اچھا دن میں نے آج تک نہیں دیکھا، اس سے بڑا خوشی کا دن میری نظر میں کوئی نہیں تھا۔ اور جس دن محمد رسول اللہ 12 ربیع الاول کو اس دنیا سے چل بسے، اس سے زیادہ میں نے آنسوؤں کا دن اور غم کا دن میں نے نہیں دیکھا۔ اس دن سبھی نڈھال تھے، کسی کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ محمد رسول اللہ ہمیں چھوڑ کر اس طرح چلے جائیں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ اپنے باپ کی جسم کے پاس بیٹھ کر، اپنے باپ کے سرہانے بیٹھ کر یہ کہتی جا رہی تھی، وا کر بابا تو من جاب ربن دعا، وا کر بابا من جنت الفردوس ماوا، وا کر بابا الى جبریل ننا۔ ہائے میرے ابو، من اجاب ربن دعا، آپ کو آپ کے رب نے بلایا اور آپ چلے گئے، اپنے باپ کے پاس بیٹھی ہیں اور یہ کہتی جا رہی ہیں، وا کر بابا من اجاب ربن دعا۔ ہائے میرے ابو، آپ کو آپ کے رب نے بلایا اور آپ چلے گئے، آپ نے ایک بار بھی انکار نہیں کیا۔ وا کر بابا من جنت الفردوس ماوا، اے میرے ابو آپ کا ٹھکانہ تو جنت الفردوس ہے۔ اب جبرائیل کس کے پاس قرآن کی آیتیں لے کر آئیں گے؟ اب جبرائیل کس کے پاس قرآن لے کر آئیں گے؟ وا کر بابا الا جبریل ننا، اے ابو میں جبریل کو منع کرتی ہوں، میں جبریل کو روک دیتی ہوں، اب وہ دنیا میں نہیں آئیں گے اور قرآن نہیں، کیونکہ صاحب قرآن اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ اس دنیا میں جس پر قرآن اترتا تھا وہ چل بسا، اب میں جبرائیل کو منع کرتی ہوں اب قرآن لے کر نہ آئے۔ کیسا لگ رہا ہے ان جملوں سے؟ حضرت فاطمہ کا اپنا بیان ہے کہ جس دن محمد رسول اللہ کا انتقال ہوا، میرے اوپر غموں کے اتنے پہاڑ ٹوٹے، اتنے پہاڑ ٹوٹے غموں کے کہ اگر یہ غموں کے پہاڑ، اگر یہ غموں کا ازدحام اور غموں کا یہ بوجھ کسی پہاڑ کے اوپر ڈال دیا جاتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا اور پہاڑ بھی چھلنی چھلنی ہو جاتا، پہاڑ بھی ذرہ ذرہ ہو جاتا۔ یعنی میں نے وہ غم برداشت کیا کہ اتنا بڑا غم کسی پہاڑ پہ ڈالا جاتا تو پہاڑ بھی برداشت نہیں کر پاتا۔ حضرت فاطمہ کا یہ حال ہے 12 ربیع الاول کو، حضرت عمر کا یہ حال ہے 12 ربیع الاول کو، حضرت انس کا یہ حال ہے 12 ربیع الاول کو، پورے مدینے کا یہ حال ہے
12 रबीउल अव्वल को। आए हिंदुस्तान के जाहिल मुसलमानों, तुम्हारा क्या हाल है 12 रबीउल अव्वल को, तुम्हारा क्या हाल है 12 रबीउल अव्वल को, जिस दिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का इंतकाल हुआ। तुम जश्न मनाते हो, शर्म मगर तुम्हें नहीं आती। मेरे प्यारे साथियों, हमें इस चीज पर गौर करना चाहिए और सोचना चाहिए मोहब्बत रसूल का मायार क्या है और मोहब्बत रसूल का कसौटी क्या है। मोहब्बत रसूल उसी को हासिल हो सकती है जो नबी की एक एक सुन्नत को जिंदा करे। अपने आबा व अजदाद, अपने औलाद, अपने भाई, अपनी बीवी, अपना कुंबा और कबीला, अपना माल, अपनी बिजनेस, अपने मकान और सारी कायनात से ज्यादा जब तक वो रसूलुल्लाह से मोहब्बत नहीं करेगा, मेरे प्यारे साथियों, कामयाब मुकम्मल मोमिन नहीं हो सकता है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, इलाहुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को रसूल की मोहब्बत का सही मतलब समझने की तौफीक अता फरमा। आय अल्लाह, हमें रसूल से दोगली मोहब्बत नहीं, सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। मोहब्बत का जो मायार है वो हमें अपनाने की तौफीक अता फरमा। हजरत फातिमा ने गम का मायार क्या बताया था, उमर का क्या हाल था, हमें उनसे सीखने की तौफीक अता फरमा। आय अल्लाह, जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिम्मेदारी है, आप हमको टाइम दीजिए, बताइए कितना बोलना है। मैं 2 मिनट पहले अपनी तकरीर खत्म कर दूंगा, 1 मिनट आगे नहीं बढ़ने दूंगा। हमारे जुमे के खुतबे होते हैं 12:30 से लेकर 1 तक, 1:01 नहीं होने देता हूं। सही सलाहियत वो कहलाती है कि आदमी अपनी पूरी बात कम समय में भी कह ले जाए, थोड़े वक्त में भी अपनी बात कह ले जाए। एक बार जब अंग्रेजों की हुकूमत थी यहाँ पर और महात्मा गांधी को बड़ी मुसीबतों से गुजरना पड़ा, तो अंग्रेजों ने उनको कैद किया, बड़ी मुश्किल से उनको बोलने की इजाजत दी, लेकिन उनसे कह दिया कि आपके पास 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट में जो बात कहना हो कहो। महात्मा गांधी ने अपनी बात 1 मिनट में भी कह दी थी लोगों से, और क्या कहा, लोगों मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिला बोलने का, इन अंग्रेजों ने मुझे 1 मिनट का टाइम दिया है, लिहाजा भारत की कंडीशन ये है, हमें यूं करना है। बस ये कहकर वो हट गए, इतनी सी बात कहकर इशारा कर गए कि हमें तुम्हें निकालना है और भारत के अंदर हमें गुलामी से अपने मुल्क को आजाद करना है। 1 मिनट में वो अपनी बात कह गए। अच्छा खतीब, अच्छा मुकर्रिर, अच्छा मौलवी वो होता है जो कम समय में भी अपनी बात कह ले जाता है। मेरे भाइयों, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने हमें और आपको इस्लाम दिया। इस्लाम नाम ही है वक्त की पाबंदी का। देख लीजिए आप, फजर की नमाज उसका एक वक्त है, जोहर की नमाज उसका एक वक्त है, असर की नमाज उसका एक वक्त है, मगरिब की नमाज उसका एक वक्त है, इशा की नमाज उसका एक वक्त है। यह भी कह दिया गया इस वक्त पर आओ नमाज पढ़ो, और यह भी कहा बिला किसी उज़्र शरई के अगर आपने वक्त की पाबंदी नहीं की तो आप गुनाहगार भी होंगे। उज़्र शरई होना चाहिए, बुखार आ गया, बीमार है, आंख लग गई, सो गए, नहीं उठ पाए। ये भी नहीं कहा कि 5 वक्त की नमाज आप एक ही टाइम में पढ़ लो। चलिए हम खड़े हो गए, अल्लाहू अकबर, नमाज ही तो पढ़ना है। फजर की नमाज हम अभी पढ़ लेते हैं, नहीं होगी। जोहर की नमाज, 5 नमाज हम इकट्ठी पढ़ लेते हैं, चलिए, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इस्लाम हमें नमाज का नहीं, हमें वक्त का पाबंद बनाना चाहता है। वक्त की पाबंदी करना सीखिए। रोजे का एक वक्त है, आप इस वक्त रमजान के रोजे रखना चाहें नहीं रख सकते, वो अपने टाइम पर ही रखना पड़ेंगे। सर्दी है तो दिन छोटा हो जाएगा, गर्मी है तो दिन बड़ा हो जाएगा। सर्दी है तो रोजा आपको 12 घंटे का, 10 घंटे में रोजा इफ्तार हो जाएगा। गर्मी है तो 14 और 15 घंटे भी रोजा रखना पड़ेगा। ये वक्त की पाबंदी इस्लाम हमें बताता है। इस्लाम के उसूलों से हम सीखें कि वक्त की पाबंदी क्या होती है। हर मामले में अपनी जिद नहीं चलाना चाहिए, अपनी जिद नहीं चलाना चाहिए। एक वक्त था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया कि जंगे खैबर के अंदर जो माल काफिरों ने छोड़ा है और हमारे हाथ लगा है, सारे लोग खैबर में लूटा हुआ माल
اور کافروں سے چھینا ہوا مال جمع کر دیں تاکہ جو مسلمان صحابہ جنگ میں لڑ رہے تھے ان میں پورا پورا بانٹ دیا جائے اور تقسیم کر دیا جائے. تو صحابہ کرام دے گئے اور اللہ کے رسول نے جتنے لوگ لڑ رہے تھے صحابہ ان میں برابر برابر تقسیم کر دی. جانتے ہو ایک صحابی 1 مہینے کے بعد ایک چادر لے کر آئے اور کہا اللہ کے رسول جنگ خیبر میں کافروں کے ہاتھ سے جو مال لگا اس میں یہ چادر بھی تھی, یہ خوبصورت چادر تھی, اس پر میری نیت خراب ہو گئی تھی اس لیے میں نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا تھا, میں اب دینے آیا ہوں. اللہ کے نبی نے سنا تو فرمایا کیا تم نے اعلان سنا تھا, مال جمع کرنے کا حکم دیا گیا تھا تو سنا تھا؟ کہا ہاں. تو اللہ کے رسول نے کیا کہا, اس اعلان کو سننے کے باوجود تم چادر نہیں جمع کیے؟ کہا نہیں. کہا جاؤ اب چادر کو جمع کرنے کا وقت نکل گیا, اب اس چادر کے ہم کتنے ٹکڑے کریں گے اور کتنے لوگوں کو بانٹیں گے, اب یہ چادر تمہاری قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ اعلان کیا جا چکا ہے, وقت اس کا نکل چکا ہے, تم نے اپنے وقت سے اندر چادر جمع نہیں کی ہے, اب اس چادر کو قیامت کے دن لے کر آنا. اللہ کے رسول نے اس چادر کو قبول نہیں کیا. وہ صحابی برابر نماز پڑھتے رہے, روزہ رکھتے رہے, ساری عبادتیں کرتے رہے, تہجد پڑھتے رہے, ہر چیز کی پابندی کرتے رہے. پھر ایک موقع پر جنگ ہوئی, اس جنگ میں وہ شرکت بھی کیے اور مسلمانوں کے ساتھ لڑ کر قتل بھی کر دیے گئے, شہید بھی ہو گئے. صحابہ نے کہا ان کے لیے خوشخبری ہے, اے اللہ کے رسول دیکھیے وہ لڑتے لڑتے میدان جنگ میں شہید ہو گئے اور شہید تو جنتی ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا لیکن وہ جنتی نہیں ہے, لڑتے لڑتے شہید ہو گئے, ان کے بارے میں کہا وہ جنتی نہیں ہے. آپ نے فرمایا ان الشملۃ التي اخذها يوم خیبر لتشتعل علیہ نارا, یہ ہے بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ. جو چادر انہوں نے تقسیم ہونے سے پہلے لے لی تھی اور اعلان ہو جانے کے بعد جمع نہیں کی, اپنے وقت کے اندر انہوں نے اس چادر کو جمع نہیں کیا, وہ چادر جہنم کی آگ بن کر ان کے اوپر بھڑک رہی ہے. اس چادر کی امانت میں خیانت کرنے کی سزا جب تک یہ جہنم میں پا نہیں لیں گے تب تک یہ جنت میں نہیں جائیں گے. وہ چادر اس صحابی کے اوپر جہنم کی آگ بن کر بھڑک رہی ہے. وقت کی پابندی دیکھیے آپ کیا ہوتی ہے, انہوں نے وقت کے اندر چادر جمع نہیں کی. 1-2 مہینے کے بعد جب لے کے آئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جاؤ اب یہ چادر قبول نہیں کی جائے گی, قیامت کے دن لے کے آئے. وقت کی پابندی کرنا سیکھیے, ایک ایک منٹ بہت قیمتی ہے. دنیا میں سب سے زیادہ ناکام اور ناکارہ وہ انسان ہے جو وقت کی پابندی نہیں کرتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر 4-5 چیزیں گنائی ہیں. ان 4-5 چیزوں میں جانتے ہو ایک چیز آپ نے کیا فرمائی ہے, اغتنم خمسا قبل خمس. آپ نے فرمایا 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جان لو. اس میں آپ نے پہلی چیز بتائی شبابک قبل حرمک, اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو. یعنی جوانی میں عبادت کر لو, بڑھاپے میں عبادت نہیں کر سکو گے, اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو. اس میں دوسری چیز آپ نے فرمائی صحتک قبل سقمک, اپنی صحت و تندرستی کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جان لو. صحت مند ہو, تندرست ہو, اللہ کی عبادت کر لو, اپنی بیماری کا انتظار مت کرو کیونکہ بیماری میں نہ صحیح سے رکوع کر پاؤ گے نہ صحیح سے سجدہ کر پاؤ گے. پھر آپ نے اسی میں 5 چیزیں جو گنائی ان میں ایک چیز آپ نے یہ بھی فرمائی حیاتک قبل موتک, اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جان لو. اپنی زندگی میں نیک عمل کر لو, مرنے کے بعد عمل کے دروازے بند ہو جائیں گے, پھر عمل نہیں کر سکو گے. اسی 5 چیزوں میں ایک چیز آپ نے یہ بھی فرمائی فراغک قبل شغلک, اپنے فرصت کو اپنے ٹائم کو مصروف ہونے سے پہلے غنیمت جان لو. یہی ہے وقت کی پابندی. ابھی آپ فری ہو, بیٹھے ہو, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, الحمدللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ سب دعائیں پڑھو. ٹائم مل رہا ہے تو ذکر و اذکار کرو. جب فون آ جائے گا ہم نے 2 ٹرک مال بھیج دیا ہے, جلدی جائیے اپنے آفس. اب آپ آفس میں جا رہے ہیں, مال اتروا رہے ہیں,
पुलिस ना पकड़ ले, जल्दी उसको ठिकाने ले। अब आप बिजी हो गए, अब आप अल्लाह की इबादत कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो एक चीज बताई, जब टाइम मिल रहा है तो इस टाइम को गनीमत जान लो। एक एक मिनट को गनीमत जानने का हुक्म दिया। एक एक मिनट को गनीमत जानो, एक एक सेकंड को गनीमत जानो। जो मिनट तुम्हारी जिंदगी से गुजर गया वो दोबारा वापस लौट कर नहीं आएगा। इसलिए वक्त की अहमियत को समझो और अपनी जिम्मेदारी को समझो। हर आदमी अपनी जिम्मेदारी समझे। हजरत उमर फारूक जब खलीफा बनाए गए तो आपको मालूम होगा, और ये वाकया शायद आपने आज तक किसी और मौलवी से ना सुना हो। हजरत उमर फारूक जब खलीफा बनाए गए तो उनके जमाने में एक ऊंट जो बैतुल माल में था, मुसलमानों की अमानत थी, किसी तरीके से रस्सी तोड़ने में कामयाब हो गया और भाग गया। खबर दी गई हजरत उमर को, वो सोए हुए थे दोपहर में, खबर दी गई एक ऊंट भाग गया। ओफो, यहाँ विजय माल्या भाग जाता है, ललित मोदी भाग जाता है, चौकीदार के नाक के नीचे से भाग जाता है। हजरत उमर फारूक को खबर दी गई एक ऊंट बैतुल माल से गायब हो गया, भाग गया है। हजरत उमर को पता चला कि एक ऊंट, या अल्लाह, मैं कयामत के दिन अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? मैं अमीरुल मोमिनीन हूं। उठे और चप्पल भी नहीं पहनी उन्होंने, नंगे पैर भागे। अरब का रेगिस्तानी इलाका, ऊंट तलाश कर रहे हैं, पैरों में चप्पल नहीं है, जमीन गर्म है। हजरत उस्मान गनी अपने घर की छत पर खड़े हैं, देखते हैं कि दूर से एक आदमी नंगे पैर भागता चला जा रहा है। दिल ही दिल में सोचते हैं कितना बड़ा बेवकूफ आदमी है, इतनी कड़ी धूप में नंगे पैर ये भाग रहा है, पता नहीं ये कहां जा रहा है, इसको थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए था। ये गर्म जमीन पर नंगे पैर क्यों भाग रहा है? ये बेवकूफ आदमी है, इतनी सख्त धूप में ये कहां भाग रहा, पसीना पसीना। जब हजरत उमर करीब से गुजरे तो उस्मान गनी पहचान गए कि ये तो हजरत उमर है। कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन, इतनी कड़ी धूप में आप कहां भाग रहे हैं, कहां जा रहे हैं? फरमाया, है उस्मान, बैतुल माल का एक ऊंट गायब हो गया है, वो आगे आगे भाग रहा है, मुझे उस ऊंट को पकड़ के बैतुल माल में जमा करना है। अगर आज वो गायब हो गया तो कयामत के दिन मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? हजरत उस्मान ने कहा, इधर आओ, हमारे घर में हमारे बहुत से नौकर हैं, बहुत से गुलाम हैं, मैं इनको भेज देता हूं, ये ऊंट पकड़ कर आपके बैतुल माल में जमा कर देंगे। आप आइए और पानी पीजिए, नंगे पैर हैं आप। हजरत उमर ने जो जवाब दिया, मदरसे के जिम्मेदारों सुनो, जलसे के जिम्मेदारों सुनो, तुम्हें भी एक एक पैसे का हिसाब देना है, मदरसे का, जलसे का एक एक रुपए का हिसाब तुम्हें भी देना है। अगर कोई मांगे तो मना नहीं करना चाहिए। हजरत उस्मान गनी ने जब कहा, आओ ठंडा पानी पी लो, बैठो, मैं अपने गुलामों को भेज देता हूं, वो ऊंट पकड़ के तुम्हारे बैतुल माल में जमा कर देंगे। हजरत उमर जवाब देते हैं, उस्मान, तेरा पानी तुझे मुबारक हो, तेरे घर की छत की का साया तुझे मुबारक हो। अमीरुल मोमिनीन मैं हूं, तुम नहीं। अगर ऊंट गायब हो गया तो कयामत के दिन सवाल मुझसे होगा, तुमसे नहीं, क्योंकि जिम्मेदार मैं हूं, तुम नहीं। ये कहकर वो आगे बढ़े और उस ऊंट को जब तक पकड़ नहीं लिया और बैतुल माल में जमा नहीं कर दिया, तब तक उनको नींद नहीं आई। जब बैतुल माल में उस ऊंट को लाए तो बैतुल माल के जिम्मेदारों से पूछा, ये ऊंट कैसे भाग गया? तुमने निगरानी नहीं की, रस्सी तोड़ने में कामयाब कैसे हो गया? तो एक साहब ने बताया, अमीरुल मोमिनीन, इस ऊंट की लेटरीन के रास्ते में जख्म हो गया है। दुम उठाया, देखा तो उसमें घाव है, जख्म है और उसकी लेटरीन के रास्ते से ब्लड निकल रहा था। हजरत उमर से कहा, अमीरुल मोमिनीन, ये बैठ नहीं पाता है, जब बैठता है तो इसको दर्द और तकलीफ होती है, इसलिए तकलीफ के अंदर इसने ताकत लगाई और रस्सी को तोड़ने में कामयाब हो गया। हजरत उमर ने कहा, इस ऊंट की लेटरीन के रास्ते में इतना बड़ा जख्म है, ये ऊंट इतना जख्मी हो गया है और अभी तक उसका कोई ख्याल नहीं रखा गया है। हम अमीरुल मोमिनीन लोगों के ही नहीं है, जानवरों पर भी रहम करना हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें बताया है। फिर उन्होंने हकीमों से पूछा कि कौन सी जड़ी बूटी
जंगल से लाई जाए और उसको पीस कर लगाया जाए। हकीमों ने बताया हजरत उमर अकेले जंगल में जाते हैं, उस जड़ी बूटी को, उस पत्ते को तोड़ के लाते हैं, फिर अपने हाथों से पीसते हैं, उसका मरहम बनाते हैं, फिर अपने हाथ से ऊंट की दुम उठाते हैं और उस दुम लैट्रीन के जख्म के रास्ते पर अपने हाथ से उस जख्म को पर मरहम लगाते हैं, वो जड़ी बूटी लगाते हैं, कहते हैं अल्लाह मेरा जो काम था वो मैंने कर लिया, शिफा देना तेरा काम है। अय अल्लाह मैं अपनी जिम्मेदारी से आजाद हो गया, अय अल्लाह अब इसको शिफा देना न देना ये तेरा काम है, जानवरों पर रहम करना ये मेरी जिम्मेदारी है, मैंने अपनी जिम्मेदारी निभा ली है, जो हो सकता है वो मैंने किया है, अय अल्लाह इस ऊंट को जल्दी से शिफा दे दे। इस वाक़े से पता चलता है कि जिम्मेदारी क्या चीज होती है। जिम्मेदारी हर आदमी को अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभानी चाहिए, हर आदमी को अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से अदा करना चाहिए। वक्त की पाबंदी बहुत जरूरी है। शुक्र अदा करो अल्लाह ताला का कि उसने हमें और आपको इस्लाम दिया है। लोग तड़प रहे हैं आज इस्लाम के लिए, वो इस्लाम जो आपका ही नहीं है। शरा लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अक़ीमुद्दीन। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने आपको वही दीन देकर भेजा है, मैंने आपको वही दीन देकर भेजा है जो दीन आपसे पहले नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देकर भेजा था, और नूह के बाद इब्राहीम और मूसा और ईसा भी जो दीन लेकर गए वही दीन मैंने आपको भी देकर भेजा है। ये गलत अफवाह है कि इस्लाम मुसलमानों का धर्म है। ये योगी मोदी आज जो चुनाव के मौके पर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं ना, और देख लीजिए कासगंज यूपी में पुलिस कस्टडी के अंदर एक मुसलमान को मार दिया गया, सिर्फ माहौल बनाने के लिए। यूपी जो चुनाव आ रहा है वो बनाने के लिए ये हिंदू मुस्लिम अगर ये अपनी किताबें पढ़ लें, योगी जी बड़े भक्त बनते हैं राम के और राम मंदिर बनवा रहे हैं अयोध्या में, अगर अपनी किताबें पढ़ लें, अपनी किताबें, तो यकीन मानिए इस्लाम से मोहब्बत करने लगेंगे, क्योंकि इस्लाम ये मुसलमानों का धर्म है ही नहीं, सिर्फ ये उनका भी धर्म है। इसी दीन और इसी धर्म को रामचंद्र जी ने भी पेश किया है, कृष्ण जी ने भी पेश किया है। ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। हमने कब कहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस्लाम लाए वही नहीं? अल्लाह ताला खुद कह रहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको मैंने कोई नया धर्म नया दीन नहीं दिया है। आपसे पहले भी जो नूह अलैहिस्सलाम आए थे उनको भी यही दीन दिया था, और नूह के बाद जो इब्राहिम, मूसा और ईसा, मोसेस और जीसस जो आए उनको भी हमने यही दीन देकर भेजा। उन लोगों ने जब दीन में गड़बड़ी पैदा की तो उसकी इस्लाह के लिए वही दीन हमने असली शक्ल में आपको देकर भेजा। क़ुल या अहलल किताबी तआलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऐलान कर दीजिए, आप दुनिया वालों को बता दीजिए, आप दुनिया वालों से कह दीजिए, आप यहूदियों से और ईसाइयों में ऐलान कर दीजिए, या अहलल किताब, आए अहले किताब, आए तौरात वालों, जबूर वालों, इंजील वालों, आए यहूदियों, आए ईसाइयों और आए दाऊद अलैहिस्सलाम के मानने वालों, तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ। देखिए कुरान क्या कह रहा है, तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, यानी वही कलमा आए यहूदियों तुम्हारा भी है, वही कलमा ईसाइयों तुम्हारा भी है। और देख लो मूसा अलैहिस्सलाम जब रसूल बनकर दुनिया में आए तो उनका कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा रसूलुल्लाह। नूह अलैहिस्सलाम को जब पहले रिसालत मिली तो उनका भी कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह रसूलुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम आए तो उनका कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रसूलुल्लाह। देख रहे हैं आप,
नूह आए तो कलमा नहीं बदला गया, सिर्फ दूसरा जुमला बदला जा रहा, बस ला इलाहा इल्लल्लाह तीनों का एक ही रहा, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह। मूसा जब आए तो पढ़ा गया ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं बदला जा रहा है। ईसा जब आए तो पढ़ा जा रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। कलमा पहला मंत्र नहीं बदला गया, रसूल के एतबार से दूसरा जुज बदला गया। जब इस्लाम आया, मुहम्मद रसूलुल्लाह आखिरी नबी बनकर आए तो आपने भी उसी मूल मंत्र को बाकी रखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पहला मंत्र नहीं बदला गया। और हिंदू भाइयों में भी पहला मंत्र वही है, एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ति नास्ति किंचन, एक ही ब्रह्मा है दूसरा नहीं। बल्कि पंडित जब मरता है तो मरने से पहले अपने बेटे को ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने की वसीयत करता है। मरने से पहले कहता है मेरे बेटे तू भी मरने से पहले ला इलाहा पढ़ लेना, जिसको हम वेदों की जबान में अनकही कहते हैं, ला इलाहा हरणे पापन इल्लल्लाह परमपिदम। मेरे बेटे मरने से पहले ला इलाहा पढ़ लेना, हरणे पापन। जब तू ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा तो तेरे पाप हरण हो जाएंगे, तेरे पाप मिट जाएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ोगे तो तुम्हारे पाप धुल जाएंगे, मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। यानी इस्लाम लाने से पाप मिट जाते हैं। इन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्ला, जो इस्लाम कबूल कर लेता है, कलमा पढ़कर इस्लाम की शीतल छाया में आ जाता है, उसके इस्लाम लाने से पहले जितने भी गुनाह है सारे के सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, उसके गुनाह बख्श दिए जाते हैं। ये इस्लाम का भी कलमा है। कौन कहता है कि इस्लाम सिर्फ मुसलमानों का धर्म है? कौन सी चीज ऐसी है जो हम करते हैं और आपके यहां नहीं है? बताइए। हम कलमा पढ़ते हैं, आप भी ब्रह्म सूत्र पढ़ते हैं, हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, आपके यहां पर भी ला इलाहा इल्लल्लाह है। ला इलाहा हरणे पापन इल्लल्लाह परमपिदम, ये क्या है? एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ति नास्ति किंचन, ये क्या है? हम नमाज पढ़ते हैं, आपके यहां पर भी साष्टांग है, 8 अंगों को जमीन पर रखो, 8 अंगों को जमीन पर रखो, यानी नाक और माथा 2, 2 हाथ 4, दोनों घुटने 6 और दोनों पैर 8, यानी सजदा करो। हमारे यहाँ नमाज है तो आपके यहाँ साष्टांग है, यानी सजदे का जिक्र आपके यहाँ पर भी है। बल्कि कृष्ण जी ने अर्जुन को 5 वक्त की नमाज पढ़ने का हुक्म भी दिया श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 6 मंत्र नंबर 10 में। योगी उज्जीत सततमात्मानं रासिस्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह। जब तुम ईश्वर की पूजा करने खड़े हो तो पूरे शरीर का योग कर लो, पूरे शरीर की एक्सरसाइज कर लो। हृदय नमा, सीने पे हाथ रख लो, हृदय दिल नमा, सर को झुका लो, सजदे की जगह पर हृदय दिल हाथ। हिंदू को देखते हो आप ऐसे करता है, मूर्ति के सामने खड़ा ऐसे, ओम भूर्भुवः स्वः। किसी हिंदू को आपने ऐसे ऐसे नहीं देखा होगा, ऐसे ही देखा होगा। क्यों? दिल से इबादत या दिल से पूजा। ये हृदय। जब ईश्वर की पूजा करने खड़े हो तो दिल पर हाथ रख लो। हम लोग भी अल्लाह अकबर कहकर यहाँ हाथ रख लेते हैं। जो लोग जहां रखते हैं हमें उनसे कोई एतराज नहीं है, लेकिन इबादत दिल से होती है, इस बात को याद रखिए। हृदय नमा, अपने सीने पर हाथ रख लो। अर्जुन कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, कृष्ण जी अर्जुन से, सतत महात्मानम, और हमेशा पढ़ते रहना, कभी छोड़ना नहीं। रास्ते स्थित, एक दिन छोड़ दोगे धर्म से हट जाओगे। अल्लाह के नबी ने क्या कहा? मन तरक अस्सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, जिसने कसदन जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़ी उसने कुफ्र किया। एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह, एक अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ। ये अच्युतात्मा, अपनी आत्मा को वहीं लगा दो, इधर उधर मत देखो, ऐसे नहीं। हम लोग क्या करते हैं? अब तो बहुत से लोग ऐसे करने लगे। और कहीं इमाम साहब ने अगर कहीं लंबी सूरत पढ़ दी, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल के, तो चौंक जाएगा, ये तो बहुत लंबी सूरत है, फिर ऐसे घड़ी देखेगा। आजकल ये हो रहा है, कभी कभी तो ऐसे भी देख लेते, ऐसे भी हो जाते हैं। जबकि कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं यच्चतात्मा, आत्मा वही लगी रहे, दिल इधर उधर नहीं होना चाहिए, एकाकी एक जगह। निराशीर परिग्रह, सारे देवी देवताओं से निराश हो जाना, ऊपर वाले से निराश मत होना। महीदेवस्य सवितु परिष्टुति वसुर्दयमान नय सुपथराय अस्मान, और उसमें ये मंत्र पढ़ना, महीदेवस्य सवितु परिष्टुति, मही मनी महान है हमारा देवता, देवस्य हमारा देवता, महीदेवस महान है हमारा देवता, सवितु जिसके लिए सारी की सारी परिष्टुति तारीफ प्रशंसा है,
महान है हमारा वो देवता जिसके लिए सारी की सारी प्रशंसा, सारी की सारी तारीफ है। हम लोग क्या पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो दोनों जहान का रब है। कृष्ण जी कह रहे हैं ये पढ़ो, हमारे यहाँ भी वही पढ़ा जा रहा है। कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन बसुर दयामाना, उसके बाद कहो वो बड़ा दयालु और कृपालु है। हम लोग क्या पढ़ते हैं? अर्रहमान अर्रहीम, वो बड़ा ही मेहरबान इंतहाई रहम करने वाला है। कृष्ण जी कहते हैं पढ़ो नए सुपथ राय आसमान, सुंदर पथ मानी रास्ता, राय मानी चलाना, आसमान हमारे फायदे के लिए। हाय प्रभु हमको हमारे लाभ हमारे फायदे के लिए सुपथा सुंदर रास्ते पर चला, हमको हमारे लाभ के लिए फायदे के लिए अच्छे रास्ते पे चला। हम और आप क्या पढ़ते हैं? इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हाय अल्लाह हमको सिराते मुस्तकीम पर सीधे रास्ते पर चला। कृष्ण जी के जो कह रहे हैं वही हमारे नबी ने भी कहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाले अगर अपनी किताबें पढ़ लें तो कभी इस्लाम से नफरत नहीं करेंगे, मुसलमानों से नफरत नहीं। उनके बस में नहीं है नफरत करना अगर वो किताबें पढ़ लें। जैसे हम इस्लाम पढ़ने के बाद और हिंदू धर्म की किताबें पढ़ने के बाद किसी हिंदू से नफरत नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा कुरान कहता है एक मनुष्य को, एक नफ्स को अगर किसी ने कत्ल कर दिया तो वो पूरी दुनिया का कातिल है। मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फकअन्नमा कतल अन्नास जमिया, जिसने दुनिया में किसी एक मनुष्य को, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, अगर आपने किसी को कत्ल कर दिया तो एक इंसान को कत्ल नहीं किया, पूरी दुनिया की इंसानियत को कत्ल कर दिया, पूरे विश्व की इंसानियत को मार डाला, पूरे मानवता का, पूरी इंसानियत के आप कातिल हैं, एक को नहीं मारा है आपने। कुरान सारी दुनिया के इंसानों को एक परिवार से देखता है, एक खानदान से तशबीह देता है। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितअरफू, हाय सारी दुनिया के इंसानों तुम आपस में भाई भाई हो इसलिए कि तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है, तुम एक बाप आदम से और एक माँ हव्वा से पैदा किए गए हो। जब तुम्हारा बाप एक, तुम्हारी माँ एक, तो तुम सब आपस में भाई भाई हो, खानदान तुम्हारा एक है, तुम एक परिवार की तरह हो, तुम एक खानदान की ब्रांच, एक पेड़ की शाखाएं हो। लीजिए कुरान हम सबको एक खानदान से, एक परिवार से जोड़ रहा है और कह रहा है कि तुम सब आपस में दूसरे के भाई हो, तुम सब आपस में दूसरे एक ही माँ और एक ही बाप के बेटे हो। इतनी बड़ी इंसानियत का सबक मेरे भाइयों दुनिया के किसी मजहब के अंदर नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन कुरान और हदीस के कानून को हमें फॉलो करना है, इसलिए इंसानियत जहां निभाना पड़े वहां रिकॉर्ड तोड़ देना, लेकिन मजहब के साथ समझौते मत करना। अल्लाह के रसूल ने यहूदियों की मदद की, अल्लाह के नबी ने ईसाइयों की मदद की, अल्लाह के नबी ने मजूसियों की मदद की, लेकिन धर्म से समझौता नहीं किया। अगर किसी हिंदू भाई को ब्लड की जरूरत है और ब्लड नहीं मिल रहा है और उसका ग्रुप आपके ब्लड ग्रुप से मैच खा रहा है और आपके एक बोतल ब्लड देने से उसकी जान बच रही है, तो इस्लाम ये कहता है कि उस वक्त आप रोजा तोड़ दो। अगर